Hello my dear students, welcome to English tutorials. This is Anuradha and today I am going to start a new topic for the students of class 5 and the name of the topic is I float my paper boats. Student, this is a poem of English tutor book of standard 5. And in this video, first of all, I will say something about the poet. After that, I will recite the poem so that you could get the correct pronunciation. After that, I will explain the poem line by line. So student, this is a very important video for you. You must watch this video carefully. And before going through the poem, I would like to say that please subscribe my channel and press bell icon so that you could get the notification of upcoming video. So student, let's start the poem. I float my paper boats. Student, this is a very interesting poem which has been written by Rabindranath Tagore. And before going through the poem, we should know something about Rabindranath Tagore. So Rabindranath Tagore was a Bengali philosopher, poet and winner of the Nobel Prize for Literature in 1913. And he was also known as Gurudev. And the most important thing is that our national anthem Jana Gana Mana was composed by him. Okay, so this is a little information about Rabindranath Tagore. Now let's see the poem. I float my paper boats. So first of all, I will recite the poem. So listen carefully. Day by day I float my paper boats, one by one down the running stream. In big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone is in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with silvery flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to land in the right. By Rabindranath Tagore. So students, now I will explain the poem line by line. Day by day I float my paper boats. Student, in this poem there is a boy who said, day by day I float my paper boats one by one down the running stream. It means एक बच्चा है जो ये बोल रहा है कि हर दिन मैं अपने पेपर बोट्स को, जो पेपर के बोट्स बनाते हैं, आप लोग भी बनाते होंगे, तो पेपर बोट्स को बच्चा बोल रहा है कि हर दिन मैं अपने पेपर बोट्स को एक एक करके रनिंग स्ट्रीम में बहवाता हूँ. रनिंग स्ट्रीम मीन्स अ स्मॉल रिवर. स्ट्रीम मीन्स अ स्मॉल रिवर. और बहता हुआ, इट मीन्स कि जो पानी की धारा बह रही है आपके घर के बाहर या कहीं भी बारिश होती है तो भी जो पानी की धारा बहती है, तो मे भी ऐसा उस बच्चे के घर के बाहर हो रहा होगा, पानी की धारा बह रही होगी. सो वो बच्चा पेपर का बोट हर दिन एक एक करके फ्लोट करता है. फ्लोट मीन्स टू मूव स्लोली थ्रू वाटर, यानी वाटर में डाल के धीरे धीरे बहाता है उसे. इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम.
इसके बाद बच्चा बोल रहा है कि इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम, और उस पेपर बोर्ड पे वो बड़े ब्लैक लेटर्स में अपना नाम लिखा है। ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और नाम के साथ वह अपने विलेज का नाम भी लिखा है जहाँ वह रहता है। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम, और वो आशा करता है कि ये जो पेपर बोट है वो किसी स्ट्रेंज लैंड में जाएगा और वहाँ पे जो भी होगा उसे वो पेपर बोट मिलेगा और वो उस बच्चे को जानेगा। उस नाम को पढ़ के, उसके गांव के नाम को पढ़ के वो जानेगा कि पेपर बोट किसका है। ठीक है, ये बच्चा होप कर रहा है, आशा कर रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट I load my little boats with शिवली। शिवली इज़ अ फ्लावर। ओके, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होता है और उसमें बहुत ही अच्छी स्मेल होती है। तो बच्चा बोल रहा है कि वो अपने पेपर बोट पे, छोटे से पेपर बोट पे शिवली फ्लावर्स को लोड करता है, रखता है, और वो जो फ्लावर्स हैं वो अपने गार्डन से तोड़ के लाया हुआ रहता है। ठीक है, उसका गार्डन है, उसमें शिवली फ्लावर से वो फ्लावर्स को तोड़ के अपने पेपर बोट पे रखे हुए हैं। एंड होप, और होप करता है, होप मीन्स आशा, होप करता है कि दैट दिस ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन द राइट। और क्योंकि फ्लावर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी देता है और खुशी देता है, तो बच्चा जो है वो अपने पेपर पे उस शिवली फ्लावर्स को रखता है और ये होप करता है कि इसकी जो खूबसूरती है, इसके साथ जो खुशी है, वो उस स्ट्रेंज लैंड, यानी ऐसा लैंड जिसको वो नहीं जानता है, उस लैंड में जाएगा और सेफली जाएगा, यानी कि बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो उस लैंड में अच्छे से जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जाके वो खुशबू अपने साथ, बच्चे ने जो उस फ्लावर्स को रखते वक्त जो उसके मन में फीलिंग्स रही होगी कि ये बहुत ही एनर्जेटिक है और बहुत ही ज़्यादा खुशी की फीलिंग है उनके मन में, तो वो फीलिंग उस प्लेस पे, स्ट्रेंज प्लेस पे सेफली पहुंचेगा। वो पेपर जो है कि उस बच्चे की खुशी को, उस बच्चे के होप को और जो ब्लूम्स है उसे वो सेफली उस स्ट्रेंज लैंड पे ले जाएगा। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट अ पोयम आई फ्लॉट माई पेपर बोर्ड्स। ठीक है, एंड आफ्टर दैट there are some new words you have to write and learn this. After that you have to write the question answer, and I will provide the question answers also. After that you have to do the book work. Okay, so this is about the poem I float my paper boards. इस पोयम को आप लोगों को लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और इसे अपनी कॉपी में लिख के याद भी करना है। यू हैव टू लर्न दिस पोयम। सो स्टूडेंट, एंड आई ऑल्सो वांट टू से दैट कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।